Good morning, church. We welcome you all for this Sunday morning service. This morning, I want to read a verse from the Bible, reading from Acts chapter 2, verse 46 and 47. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Please pay attention here. Can you repeat that again? And breaking bread from house to house. Yes. They ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Praise God for this wonderful verse. Now, coming back to the verse, this says the Lord was in their midst. And when these disciples were meeting one another house to house, they were praising God sincerely with their heart. Why not this morning? Let's all come together with one voice, one spirit, and in unity, let's praise the Lord. And let's sing this song, आ यीशु आ, ला खुशियाला मंदिर में, तेरे ही घर में आ.
unto your name. We are the broken, you are the healer, Jesus Redeemer, mighty to save. You are the love song we'll sing forever, bowing before you, blessing your name. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb who was slain. Highest praises, honor and glory be unto your name. Be unto your name. Holy, 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 Lord God Almighty, worthy is the Lamb who was slain. Highest praises, honor and glory be unto your name. Be unto your name. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा
स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद What a great service, कितना अच्छा सभा थी, great praise and worship. बहुत ही अच्छी आराधना। And now is the time to listen to the word of God. अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन से सुने। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you so much for this opportunity. धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए। We have a great hope हमारे पास बहुत बड़ी आशा है because of your word has given us. आपके वचन ने जो हमें दी है। And we pray in this time. और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, Encourage us, Lord. हमें प्रोत्साहित कीजिए Protect us, Lord. और हमें सुरक्षित रखिए Help us to prepare, Lord, for your coming. और हमें मदद कीजिए कि हम आपके आने के लिए तैयार हो जाएं। Bless this message, Lord. इस संदेश को आशीषित In कीजिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Wow, this is amazing. और ये अद्भुत है And we are going to hear from this word. और इस वचन से हम सुनने वाले हैं। Romans chapter 13, रोमियो 13 verses 11 to 14. 11 से 14। I have three things to say from this verse. और इस वचन से मैं 3 चीजें कहना चाहता हूँ। 4 verses I'm going to read, 4 वचन मैं पढ़ने वाला हूँ and 3 main points और 3 मुख्य उद्देश्य from these verses. मुद्दे इन वचनों से। Every word of God is pure. परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र है। This is in Psalms chapter 12. और ये भजन संहिता 12 में लिखा है। It means this word which you are reading, it's a pure words. इसका मतलब जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही पवित्र है। It purifies us. वो हमें पवित्र करते हैं। It makes us pure. वो हमें पवित्र कर देते It हैं has also washes us, और हमें धोते हैं removes all the impurities और सारी गंदगी को निकाल देते हैं from our soul. हमारे प्राणों से। This word has that power. और इस वचन में ये सामर्थ है That's why we are going to hear this word. और इसलिए हम इस वचन को सुनेंगे। That's why you love the word. इसलिए हम वचन से प्रेम करते हैं And because we know this is amazing power, it has amazing cleansing power. क्योंकि हमें पता है कि इस वचन में ये शुद्ध करने की अद्भुत सामर्थ है। When you look at the world today, अगर आज आप इस दुनिया को देखें when you hear the news, और जब आप समाचार सुने we always come to the conclusion, और हम इस निष्कर्ष में आते हैं what is going to happen? क्या होने वाला है We don't know हमें नहीं पता where this is going to lead. और ये कहाँ जाने वाला है We don't know. हमें नहीं पता। In a sense, yeah, we don't know. एक तरीके से हमें सच में नहीं पता। Every time we look, the cases of this virus is increasing. और हर बार जब हम देखते हैं कि ये वायरस की वजह से जो बीमार होने की संख्या बढ़ रही है And we think that, okay, what is going to happen next? और हम सोचते हैं कि अभी आगे क्या होगा। Then we hear the news that, okay, somebody from this building got और this virus positive. हमें सुनाई देता है कि ये बिल्डिंग में से किसी को ये हो गया है। But लेकिन then we turn to the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर In the Romans chapter 15 says, रोमियो 15 कहता है verse 13 says, और वचन 13 Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर जो आशा का देने वाला है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। You see that when I look the news, when I look around, और जब मैं समाचार देखता हूँ, जब मैं मेरे इर्द गिर्द देखता हूँ, many times it discourages me. और वो चीजें मुझे निराश कर देती But है। then we come to the Word of God. लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते You हैं, can come to this conclusion. आप इस निष्कर्ष पे आ जाते हो, Our God gives hope, हमारा परमेश्वर आशा देता है and He wants us to abound in the hope और वो चाहता है कि हम उस आशा में बने रहे by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ की वजह से। This is what happens when we are reading the Word. और यही होता है जब हम वचन को पढ़ते हैं When we close the Bible and meditate on it. और जब हम बाइबल को बंद कर देते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं When you hear the preacher preaches the Bible, और जब हमें प्रचारक को सुनते हैं the hope is increasing.
तो जो आशा है वो बढ़ती जाती है। And we are living in such a difficult time, और हम बहुत ही कठिन समयों में जी रहे हैं and people are like in a way like a lost hope. और एक तरीके से लोगों ने जैसे आशा ही खो दी है। But we have this word. लेकिन हमारे पास ये वचन So है। in this light we have to read these verses of Romans chapter 13. और रोमियो 13 के इस प्रकाश में हमको ये वचन पढ़ने हैं। And once I heard Pastor Carl said, एक बार पास्टर काल ने कहा था, there are 3 days which are important for Christians. एक मसीही व्यक्ति के लिए 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। One, पहला, the day that you received Jesus as your personal savior. जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारक करके स्वीकार किया। I don't know, you may know about, maybe you know it about the day when you received Jesus Christ. और शायद आपको पता होगा कि जिस दिन आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया The day you received Jesus as your personal savior. और जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारक करके व्यक्तिगत तरीके That's से an स्वीकार किया, important day वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन because है, the eternity has been changed. क्योंकि अनंत बदल गया, Because you have chosen eternal life क्योंकि आपने अनंत का जीवन जैसे चुन लिया than eternal death. और अनंत के मौत की जगह पर। So the day you received Jesus is an important day. तो जिस दिन आपने यीशु का स्वीकार किया वो महत्वपूर्ण दिन है। Second, दूसरा, the day we are looking forward that Jesus is going to come to this world. और जो दिन यीशु मसीह वापस इस धरती पे आने वाले We हैं say that is the blessed hope, और हम उसे बहुत ही महिमा की आशा कहते हैं, rapture. और जहाँ पर उठाया जाए। Jesus is coming so close to this earth, और यीशु मसीह इस धरती के इतने करीब आ जाएंगे, so close to this earth, इस धरती के इतने करीब, to take all the believers, सब विश्वासियों को लेने के लिए, already dead, जो मरे हैं also those who are alive. और जो जिंदा है उनमें। In a moment we are gone. एक क्षण में हम चले जाएंगे That day is so important. और वो दिन इतना महत्वपूर्ण But है। another day is also important. और एक दिन है जो महत्वपूर्ण है This is the third day. This is called today. और जो है आज का दिन। Today. आज का दिन Bible talks about this day. बाइबल ये दिन की बात करता है, Today. आज का दिन। For example, Psalms 95 says that today, if you hear His word, do not harden your hearts. जैसे भजन संहिता 95 कहता है कि आज अगर आप उसके वचन को सुनते हो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। Yesterday is gone. कल का दिन बीत गया, You can't do anything. अब कुछ नहीं कर पाओगे। Tomorrow, कल we don't know. कल का हमें पता नहीं, The only day left, और सिर्फ जो दिन बाद बच गया वो now, today. आज का, अभी। Isn't it amazing? क्या ये अद्भुत Live नहीं? in that. और उसमें जियो Living in every moment, और हर एक क्षण उसमें जियो, depending on Him. उसके ऊपर निर्भर होते हुए। When I look at the world today, और जब मैं आज इस दुनिया को देखता हूँ, also you are looking, आप भी देख रहे हो, you can see one thing so sure. और आप एक चीज को खास तरीके से देखते हो। Rich countries, और अमीर देश, powerful countries powerful in military, और जैसे कि सेना में बहुत ही शक्तिशाली देश, advanced in technology, और तंत्र विज्ञान में बहुत ही आगे देश, all these nations are like now stumbling. They can't do anything. और ये सारे देश अभी हड़बड़ा गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, Can't do anything. कुछ नहीं कर पा रहे। Sometimes the news comes, okay, they found some kind of virus, like antiviral medicine. कई बार समाचार में हम सुनते हैं कि उन्हें कुछ दवाई मिल गई है वायरस के विरोध में, Then says that it didn't work. लेकिन फिर वापस कहते हैं कि ये काम नहीं की। I come to this verse. और इस वचन के पास में This आता is in हूँ, Psalms 9:20. और भजन संहिता 9 का 20, Chapter 9 verse 20. It says this. भजन संहिता 9 का 20 ये कहता है, This is David's prayer. और दाऊद ये प्रार्थना करता David है, says, Lord, put them in fear, O Lord, that the nations may know themselves to be but men. हे परमेश्वर उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। The nations were thinking they are something, और देश सोच रहे थे कि वो बहुत कुछ है, but now they come to this conclusion, लेकिन अब वो इस निष्कर्ष पे आ गए हैं, they are but men. वो सिर्फ मनुष्य ही है। It's amazing. अद्भुत है ये, But people don't admit it लेकिन लोग इसे मानते नहीं, because of the pride. घमंड की वजह से। That's why Ecclesiastes chapter 3 verse 8 says that. इसीलिए सबोपदेशक 3:18.
3:18 कहता he है, says that Lord, कहता है परमेश्वर, consider the sons of men, और इन मनुष्य को देखो, they are like a beast. वो जानवर के जैसे हैं, They also die. वो भी मर जाते हैं. But in all this contest, और इन सारे संदर्भों में as a believers, विश्वासी के as an नाते amazing privilege, हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है, we have a responsibility. हमारे पास एक जिम्मेदारी है, And that's what today we are going to talk about. और यही आज हम बात करेंगे. So come to Romans chapter 13, you are already there, रोमियो 13 जो हमने पहले खोला है, verse 11. वचन 11. And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले. Let us walk properly as in the day, not in revelry or drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. जैसे दिन की शोभा है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में. But put on the Lord Jesus Christ, make no provision for the flesh to fulfill its lusts. वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो. Father, bless this portion. पिता, इस हिस्से को आप आशीषित कीजिए In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमीन. Paul is writing to this Romans. पौलुस इन रोमियों को लिख रहा है. Amazing verses. अद्भुत वचन. And the three things I just wanted to from these verses. और इन वचनों से तीन I just want to talk about three things. चीजों के बारे में मैं बातें करूंगा. One is wake up. पहला है उठ जाना. Second, दूसरा wear it. पहन लेना. Third, तीसरा walk in it. इसमें चलना. Okay, so wake up, उठना, wear it, पहनना and walk it. और चलना. Walk in it. उसमें चलना. So I just wanted to think about this thing. तो इन चीजों के बारे में मैं चाहता हूँ आप आज- सोचे. Paul, in that first century Christian, पौलुस जो पहली सदी का मसीही, is so much had anticipation. और कितना वो जैसे राह देख रहा था, He's saying that this is the high time. और वो कहता है कि अब समय आ गया है. Knowing the time, और ये समय को जानते now is the high time. और बहुत ही करीब है. So awake out of sleep. तो नींद से जाग जाओ. Wow, it's amazing, isn't it? A warning. क्या ये अच्छी चेतावनी नहीं? Paul says that the light is shining. और पौलुस कहता है देखो प्रकाश चमक रहा है, The night is far spent. और रात तो बीत गई है The day is coming. और दिन आ रहा है. Get up, इसलिए उठ जाओ, awake. उठ जाओ. We are the sons of the day. और हम इस दिन के बच्चे हैं, We are not the sons of the night. और हम रात के बच्चे नहीं हैं. Paul says in these verses, और पौलुस इन वचनों में कहता है wake up. जाग जाओ. The word wake means और जो ये जागना इसका मतलब है get up. उठना. The same word is used और यही वचन इस्तेमाल किया गया है. when God raised Jesus from the dead. और जब यीशु मसीह ने को परमेश्वर ने मृत्यु में से जी उठाया, Raised him. उसको जिलाया, Raised him from the dead. उसको मृत्यु से That's the जिलाया. word it is same used here. और यही वचन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, Wake from the sleep. जैसे नींद से जागने के That लिए. means I need to be spiritually alert. इसका मतलब आत्मिक रीति से मुझे सतर्क रहना When है. I see the things happening, जब मैं देखता हूँ चीजों को होते we हुए, know one thing is sure. हम एक चीज खास करके जानते हैं, Because this word has said these things. क्योंकि इस वचन में इन चीजों को लिखा गया है All these things are going to come. कि ये सारी चीजें होने वाली है. Earthquakes and the pestilence and everything is coming. भूकंप होगा और बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां आएंगी, And this is what happening now. और ये सारी चीजें हो रही And हैं. these are the signs of the last days.
और ये आखिरी समय के चिन्ह है। But Paul is saying something because you are get up. और पौलुस कुछ कह रहा है कि उठ जाओ। Why? क्यों? He says that our salvation is nearer than when we first believed. और वो कहता है कि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार अभी और निकट है। You have to understand this verse. इस वचन को आपको समझना The जरूरी है। salvation is so near. जो उद्धार जो बहुत ही निकट है। Like we learned in the Bible college. बाइबल क्लास में हमने सीखा है, Because we study the Bible. जैसे बाइबल हम पढ़ते हैं Because we are saved कि हम उद्धार में हैं। so and so day. उस दिन में You receive Jesus Christ. अपने यीशु मसीह को स्वीकार And किया we believe that Jesus paid for our sins. और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों का भुगतान किया। Today आज we are being saved. अब हमारा उद्धार हो रहा है। That means like I'm delivered from the power of sin. मतलब इसका मतलब कि मैं पाप की जो सामर्थ्य है उससे छुड़ाया जाता हूँ। I'm already I'm a child of God. पहले ही मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ I am in the family of God. और मैं परमेश्वर के परिवार में हूँ My name is written in the Lamb's book of life. और मेरा नाम जो मेमने की किताब में लिखा गया है No one can do anything to undo that. और कोई उसे वापस नहीं निकाल सकता। My name is written, it's written. मेरा नाम लिखा गया है, वो लिखा गया है। So do yours. तो आपके बारे में भी Like it's exactly. और यही है। But लेकिन as we are walking today, आज जैसे हम चलते हैं we make decisions. हम निर्णय लेते हैं We also know that the power of sin, और हम इस पाप के सामर्थ को भी जानते हैं। it has the power इसके पास एक सामर्थ है to pull us back जो हमें पीछे खींच सकता है so that we will not walk with the Lord. कि हम परमेश्वर के साथ नहीं चले। That's what Hebrews chapter 12, the writer says. और यही इब्रानियों का 12 में लेखक कहता है Looking unto Jesus, यीशु मसीह की तरफ the देखना author and the finisher of our faith. जो हमारे विश्वास का कर्ता और रचयिता है। Lay aside, और निकाल फेंको lay aside every sin. और हर एक पाप को निकाल Like it says that lay aside every weight और हर एक जो बोझ है उसे निकाल दीजिए and the sin which easily ensnares us. और पाप जो हमें बहुत ही आसानी से फंसाता है Lay aside all those things. और उन चीजों को निकाल फेंको। So we, as a believers, as we walk, we know in our experience. और हमारे अनुभव में विश्वासी होने के बाद हम इसे जानते हैं There is a force pulling us back. और ऐसे एक जोर है जो हमें बाहर पीछे खींचता है। But we have the Word of God. तो हमारे पास परमेश्वर का वचन We है, have the Holy Spirit. हमारे पास पवित्र आत्मा We है have the body of Christ around us. और हमारे बाजू में परमेश्वर ने मसीह की देह को रखा है Through this we get victory over sin. और इनके द्वारा हम इस पाप के ऊपर विजय पाते But हैं। there is a day लेकिन एक दिन आएगा which is coming. जो आएगा That's what Paul says here. और यही पौलुस यहाँ पे बोल रहा है That salvation is nearer. कि वो उद्धार बहुत ही करीब आ गया है। What is meaning? इसका ये वो कहना He चाहता है, says, वो कहता है because there is a day which is coming, I will be delivered from the presence of sin. एक दिन आने वाला है जब मैं इस पाप की समक्षता से छुड़ाया जाऊंगा। As Romans chapter 8 talks about it. रोमियो 8 उसके बारे में बात It करता says है the redemption of our body. और ये हमारे शरीर का उद्धार है There is a glorified body और हमारा महिमा का शरीर which is not subject to death, sickness, और जिसके ऊपर मौत की कोई अधिकार नहीं या फिर बीमारी नहीं which is not subject to the powers of sin. और इसमें कोई पाप का अधिकार नहीं It is going to be a glorified body. और एक महिमा का शरीर होगा। Paul says, पौलुस कहता है it is so near. वो बहुत करीब है। In a way, he says that the Christ coming is so near. एक तरीके से वो कहता है कि यीशु मसीह का आना है वो इतना करीब है। I want to say to you, मैं आपसे ये कहना as चाहता हूँ believers, एक विश्वासी होने के this नाते is the blessed hope. और ये हमारी महिमा की आशा है He is coming. कि वो आ रहा है He is not delayed. और वो देरी नहीं Or करता। some people say he will never come. कोई लोग कहते हैं कि वो आएगा ही नहीं। I heard that somebody was making a comment like he said, oh, because he was on the he had so much wine, that's why he made that statement. I'm coming back.
और कोई लोग ऐसे कहते हैं कि उसने बहुत शराब पी ली थी इसलिए उसने कहा कि वो वापस आएगा। No, friend. नहीं, ऐसा नहीं। Every word of God is pure words. परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र है It will come to pass. और वो जरूर पूरा होता He is है। going to come. वो आने वाला है। Paul says, पौलुस कहता है the salvation, our salvation is nearer. कि हमारा उद्धार और करीब है। Wow, we can't meet today as a in a church. और एक तरीके से जब हम कलीसिया में नहीं मिल पा रहे हैं I am आज, so thankful you are like listening. और मैं बहुत आशीषित हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सुन रहे हैं, You love the word. कि आप वचन से प्रेम करते You हैं, love one another. एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Yes, we all have issues. हमारे सब में परेशानियां हैं We can we have issues with others. और एक दूसरे के साथ हमारी तकलीफें हो जाती हैं, But लेकिन Paul says, पौलुस कहता है our salvation, हमारा उद्धार, meaning it's a body of Christ. इसका मतलब हम मसीह की देह, Oh, we are waiting for this. और हम इसके लिए रुके हैं। It's so nearer वो इतना करीब है than we first believed. जो हमने पहले विश्वास किया Maybe उससे। you have become a believer maybe like 5 years now, और शायद आप विश्वासियों के 5 साल हो गए maybe होंगे, 10 years, या 10 साल, maybe 20 years. या 20 साल, But लेकिन now this salvation, अभी जो उद्धार है, that salvation means like I am going to be transformed even in my body. इसका मतलब कि मेरे शरीर में अभी मैं परिवर्तित होने वाला हूँ, It is going to become is so soon. और वो तुरंत होने वाला है। Wake up. जाग जा, I need to be wake up. और मुझे जागने की जरूरत I है, need to be alert. और मुझे सतर्क होने की जरूरत है। Paul is not talking about a physical sleep. और पौलुस हम जैसे सो जाते हैं वो सोने की बात नहीं कर रहा है, He's talking about spiritually. I need to be alert. और आत्मिक रीति से मुझे सतर्क होने की बात वो करता We है। need to be alert by looking at these things इन चीजों को देखकर मुझे सतर्क होने की जरूरत है, for preparation for my preparing of my Lord and Savior Jesus Christ. और मैं अपना प्रभु यीशु मसीह उसके लिए मैं जैसे अपने आप को तैयार करता हूँ। Lazy man says there is a lion in the street. और जैसे आलसी मनुष्य कहता है कि रास्ते में शेर है, And as a door like it swings on its hinges, और जैसे कि एक दरवाजा रहता है कि अपनी वो उसी टावरी में घूमता है, right? You know the door is like the hinges and the door swings like this, और दरवाजा जहाँ पे Opens. जुड़ा है वहीं से वो खुलता है, right? Like that, the इसी lazy man तरीके in से। his bed. वो वैसे ही आलसी मनुष्य अपने बिस्तर में रहता है। He talks about that spiritually, like he doesn't want to take any initiation. आत्मिक रीति से जैसे वो कुछ करना ही नहीं चाहता है। In Matthew chapter 25, what Jesus says about this parable. मत्ती 25 में यीशु मसीह दृष्टांत के बारे में कहते हैं Master is gone, कि मालिक चला गया है the bridegroom is gone. और जैसे दूल्हा चला गया है, But that 5 of those virgins were prepared with the oil and the lamp. लेकिन 5 कुमारियां वो अपने तेल और अपने दियों के साथ तैयार थी, Another 5, और जो दूसरी जो 5 थी they are not ready. वो तैयार नहीं They थी। had lamp, उनके पास दिए तो but they थे, didn't have oil. लेकिन उसमें तेल ही नहीं था। What happened? क्या हुआ? All went to sleep. सब सो गई, But in the midnight, the cry came. लेकिन आधी रात में जैसे आवाज आई, He's coming. वो आ रहा है, They got up. वो उठी, The 5 who was everything was there, the oil was there. और जो 5 थी जिनके पास सारी चीजें थी, तेल था, What happened? क्या हुआ? They welcomed. उन्होंने उसको वेलकम किया। Another 5, और दूसरी जो 5 थी they didn't have oil. उनके पास तेल नहीं था। Why? Spiritually alert. आत्मिक रीति से सतर्क I रहना। believe this is a time where God is preparing us as believers. और मैं ऐसे सोचता हूँ कि इस समय में परमेश्वर एक विश्वासी होने के नाते हमें तैयार कर रहा है, Preparing us inwardly. आंतरिक रूप से तैयार करता Less है, distraction. और बहुत सारे कम डिस्ट्रैक्शन। Some of you may be working from home. शायद आप में से कई घर से काम कर रहे हैं, Others are maybe enough time. और शायद दूसरे लोगों के पास बहुत समय है, For whatever it is, लेकिन कुछ भी क्यों न हो, this is the time ये समय है for us to prepare. हमारे लिए तैयार होने के We लिए। don't know when we are going to meet next time.
और हमें नहीं पता हम वापस कभी मिलेंगे। I hope it should happen so early, और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हो, but I don't know. लेकिन मुझे नहीं We पता don't know how the condition is going to be. और हमें नहीं पता परिस्थिति आगे क्या I'm होगी। hearing the news about people are losing job, finances are going down. और मैं समाचार सुनता हूँ कि लोगों के नौकरियां चली गई है और सब चीजें नीचे जा रही हैं। But we know one thing: लेकिन एक चीज हम जानते every हैं word of God is pure. कि परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र है। Psalm 37 he promised. भजन संहिता 37 में उसने वादा किया David है। is saying, दाऊद कहता है, I was young, मैं जवान था, now I'm old. अब मैं बूढ़ा I हूँ never seen the righteous is forsaken. और मैंने कभी धर्मी व्यक्ति को धुतकारा हुआ नहीं God will देखा। never forsake the righteous. परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति को कभी नहीं You may धुतकारेगा। ask what will happen, what is going to happen, what about my finances, month of June. आप मुझे पूछोगे क्या होने वाला है मेरे आर्थिक स्थिति के बारे में, जून के महीने में मेरी आर्थिक स्थिति क्या होगी, Yes, I don't know. मुझे नहीं पता। But we know one thing: लेकिन एक चीज हम जानते हैं, God never forsakes us. परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। Wake up, जाग जाओ, spiritually alert. आत्मिक रीति से I सतर्क। can look all these details. और मैं सारी इन चीजों को देख सकता हूँ, What is happening around us? मेरे बाजू में क्या हो रहा है, But लेकिन I need this word. मुझे इस वचन की जरूरत है। It says, wake up, और वो कहता है जागो, wake up, जागो, because this is the high time. क्योंकि समय बहुत करीब है, Time has come. समय आ पहुंचा है। The salvation, वो उद्धार, meaning the rapture is so near. इसका मतलब कि रैप्चर बहुत ही करीब है। Wake up, जाग जाओ, wake up. जाग जाओ। People have maybe a vocabulary, लोगों के पास बहुत ही शब्दकोश है, Christian vocabulary, मसीही शब्दकोश, but लेकिन their knowledge of God is so poor. उनका परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है उसमें वो बहुत ही गरीब है। People say that I've been looking for the second coming of Christ हाँ, लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन की राह देखता हूँ, because they want to get out of these troubles. क्योंकि इन परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं। But लेकिन God has promised. परमेश्वर ने जो In वादा this किया time, इस समय में, He says, वो कहता है prepare, तैयारी करो, prepare yourself अपने आप को तैयार in करो this time. इस समय में। Second, दूसरी चीज, when you wake up जब आप जागते हो, and we want to go somewhere, अगर हम कहीं जाना like चाहते as our daily routine in the past months, और पिछले महीनों में जैसे हमारा दिनचर्या थी, when we wake up, हम उठते हैं we just get ready, और हम तैयार हो जाते हैं, catch the train. ट्रेन पकड़नी है। Now everything is like a flashback memory, isn't it? और अभी एक फ्लैशबैक पीछे बीता हुआ कल के जैसे है It's like a story, और एक कहानी जैसे। right? But लेकिन when you wake up and then get ready, और जब आप उठते हो, तैयार होते हो you put a cloth. और जब कपड़े पहनते हो, Paul says here, पौलुस ये कहता है wear it. उसे पहन लो। What to wear? क्या पहनना Okay, है? that's in verse 12. और वचन 12 में है, The night is far spent, रात बहुत बीत गई the है day is at hand. और दिन निकलने पर है। Therefore, let us cast off the works of darkness. और जो 4 शब्द है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग करो। Let us put on the armor of light. हम ज्योति के हथियार बांध ले। Put on the armor of light. ज्योति के हथियारों को बांध लेना Wow, this is amazing. यह अद्भुत है। God is light, परमेश्वर ज्योति है and we are His children. और हम उसके बच्चे हैं। In 1 John chapter 1 verse 7 says, पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, if we say अगर हम कहते हैं, we have fellowship with Him, अगर हम उसके साथ संगति रखते then हैं we walk और हम जब चलते हैं in darkness, अंधकार में, then we make Him a liar. तब हम उसे झूठा ठहराते हैं। What are we wearing today? आज हम क्या पहने हुए हैं? What Paul says, पौलुस क्या कहता है? put the armor of light. प्रकाश के हथियारों को बांध लो। God prepared a cloth for His people. परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कपड़े बनाए हैं। God prepared cloth for His people. परमेश्वर ने हमारे लिए कपड़े तैयार किए हैं That is the armor of light. और वो प्रकाश के हथियार है। People have many kinds of cloth. लोगों के पास अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं Positive thinking, और
बहुत ही अच्छा सकारात्मक विचार, or take some medicine, या फिर कुछ दवाइयाँ लेना, drugs, या फिर ड्रग्स लेना, or entertainment. या फिर मनोरंजन. These are all artificial lights. और ये जो है ये अप्राकृतिक प्रकाश है, These are artificial lights. और ये नैसर्गिक नहीं है. But लेकिन we हम have the real light of God. हमारे पास सच्चा प्रकाश है जो परमेश्वर का है. So Paul says, पौलुस इसलिए कहता है put that, उसे पहनो, wake up, उठो wear that garment, और उस कपड़ों को पहन लो, wear the garment of light. और उस प्रकाश के कपड़ों को पहन लो. We need that और हमें उसकी जरूरत है, because this is a dark world. क्योंकि ये अंधकार का जैसे अंधकार की दुनिया है. I want to read John chapter 3, Gospel of John chapter 3, 19 to 21. यूहन्ना 3 का 19 से 21 में पढ़ना चाहूंगा. He says, ये कहता है, this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार की ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे. For everyone practicing evil hates the light and does not come into light, lest his deeds should be exposed. क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए. But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं. We put on the armor of light. और हम इस प्रकाश के वस्त्रों को पहन लेते We हैं put that garment. और हम उन कपड़ों को पहनते हैं. Paul says in Galatians chapter 5, गलातियों 5 में जैसे पौलुस कहता है, don't put that garments of darkness और अंधकार के कपड़ों को मत पहनो, or the works of the flesh, या फिर देह के कामों को पहन लो. where Paul says in Romans 13, which we read, रोमियो 13 में जैसे पौलुस कहता है, that's not our garments. और ये हमारे कपड़े नहीं We हैं, have the garments of light. हमारे पास प्रकाश के कपड़े हैं. What if I am as a believer? एक विश्वासी होने के नाते अगर क्या होगा, I'm a child of God, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ but I'm putting the garment of darkness. और मैं अंधकार के कपड़ों को पहनता हूँ. That's why John chapter 3, इसलिए यूहन्ना 3 कहता है, it can be exposed, और वो दर्शाया जाएगा, because light will expose it. क्योंकि प्रकाश उसे दर्शाएगा It can be seen by others. और दूसरे लोग इसे देख लेते हैं. I can be seen. I also see it. और मैं भी खुद देखता हूँ. You know one thing? लेकिन एक चीज I don't want to क्या? meet the Lord मैं परमेश्वर को मिलना नहीं चाहता in the dirty cloth. उन गंदे कपड़ों में. Right? That's what we are preparing. इसीलिए हम तैयारी कर We रहे are हैं. preparing every day. हर दिन हम तैयार हो रहे हैं Preparing for His coming. उसके आने के लिए Now it तैयार is, हो रहे हैं. let us cast off the works of darkness. और अंधकार के जो काम है उनको निकाल दो Let us put on और पहन लो armor of light. प्रकाश के हथियारों को. Third point, तीसरा and this last. मुद्दा और जो आखिरी है, Wake up, उठो, wear it. पहनो. Third, तीसरा, walk it. Walk चलो. in it. उसमें चलो, Walk. उसमें चलो. Christian life is a practical life. और मसीही जीवन एक बहुत ही साधारण जीवन है. We don't read the Bible to just only to get knowledge. और हम बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें ज्ञान चाहिए. We also, this word is a food for our soul. और ये वचन जैसे हमारे प्राणों के लिए जैसे खाना है, But also it's a lamp unto our feet. और उसके साथ साथ हमारे पैरों के लिए प्रकाश भी है, Give us direction. और हमें जो मार्गदर्शन देता So है. Paul says here, और पौलुस कहता है walk properly. कि सीधी साथ चाल चलो, Walk properly. सही चलो. Let us walk properly. Verse 13. वचन 13 जो कहता है कि सीधी चाल चलो, As in the day, जैसे दिन को शोभा देता है, not in the night. रात के लिए नहीं. He says about the characteristics of the night in the next that verses. और उन वचनों में रात की जो खास चीजें बताता है.
revelry, drunkenness, lewdness, lust, strife, envy. लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े, डाह, We all did this. और हम सब ने ये सारी चीजें की। Ephesians 2:2 says that we were walked according to the course of this world. इफिसियों 2:2 कहता है कि हमने इस दुनिया की रीति से हम चले। Paul is saying to those that believers, don't walk like Gentiles walk in Ephesians 4:17. और इफिसियों 4:17 में पौलुस विश्वासियों से कहता है कि ऐसी चाल मत चलो जैसे अन्य जाति वाले चलते हैं। But Paul says, पौलुस ये कहता है walk in चलो the new way. नए तरीके से चलो, नए रास्ते में। Ephesians 2:10. इफिसियों 2:10 Walk in love. प्यार में चलो, Walk properly. सही तरीके से चलो। God has made a way. परमेश्वर ने मार्ग बनाया Walk in है, it. उसमें चलो। It is a life of faith. और ये विश्वास का जीवन है। 2 Corinthians 5:7 says that we are not walking by sight, we are walking by faith. दूसरा कोरिन्थियों 5:7 कहता है कि हम अपनी दृष्टि से नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। As a believer, एक विश्वासी होने के नाते as you get up this morning, जैसे आज सुबह आप उठे, don't say that it's another morning. आप ऐसा मत कहो रोज के जो हमेशा की जो सुबह होती वैसी ही You है। know something in you today. आप एक चीज जानते हो आपके अंदर, There is a newness of life. इसमें एक नयापन है The newness of life which Christ has given to you. और एक जीवन का नयापन जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। Your neighbors may be unbelievers. They may not have that. They don't have that. और आपके जो पड़ोसी जो अविश्वासी है उनमें ये नहीं है, But you have it. लेकिन आप में है। It doesn't matter where you live. और फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ जीते हो, It doesn't matter you lost a job or you have it. फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नौकरी चली गई या फिर आपकी नौकरी है But तो। you have this. Romans chapter 6:4. Walk in the newness of life. लेकिन आपके पास रोमियो का 6:4 है कि इस जीवन के नएपन में चलो। We are walking in the newness of life. इस जीवन के नएपन में आप चलते हो। God is calling us. परमेश्वर हमें बुला रहा है, Wake up. उठाओ उठो। Yes, there is a trouble. और हाँ परेशानी है, There is a trouble. हाँ तकलीफ है, Real trouble. सच्ची तकलीफ। God says, believe me. परमेश्वर कहता है विश्वास रखो I मुझ am पर, your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर I will हूँ, not forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं You छोड़ूंगा। can look at the around surrounding you, surrounds you. और आप उन चीजों को देख सकते हो जो आपको घिरे हुए हैं। Maybe it discourages. शायद निराशा It causes fear. और शायद डर हमें आता है, When this virus can come, और कब ये वायरस आ सकता है। God says, परमेश्वर ये कहता I am है with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I will never forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। You may say that God, I don't have money. और आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं, What will परमेश्वर happen? क्या होगा। God says, I know it. परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ, There is a day is coming. एक दिन आने वाला है My son is coming. और बेटा My आए- son is coming. मेरा बेटा आएगा That salvation is going to appear. और वो उद्धार प्रकट होगा That is a glorious day. और वो महिमा का दिन होगा। Yeah, I just like we this real life is real. और हमारा जीवन एक सच्चा जीवन है। Problem is there. और परेशानियां हैं We as a church trying to help people. और एक कलीसिया होने के नाते हम लोगों की मदद कर रहे हैं। Vijay ji and Rashmi ji, somebody sponsored some money and they bought things and distributed to needy people. और विजय जी और रश्मि जी ने किसी ने उनको पैसे दिए, उन्होंने सारी चीजें लाई और लोगों को बांटी And they distributed to many of the people in our believers, in our church people, और हमारे कलीसिया के जो विश्वासियों में बहुत सारे विश्वासियों में उन्होंने बांटी those who are needy. जो जरूरतमंद It's है। real. और ये सच है This is real. और ये सच्चाई है। As a church, like as look the finances, I'm so thankful. You are like that's amazing. We have a great offering. और कलीसिया होने के नाते जब मैं कलीसिया की जो आर्थिक स्थिति को देखता हूँ तो मैं आप सभी का धन्यवाद But करता still, हूँ, we have fallen short. लेकिन फिर भी हम कम पड़ But I गए believe हैं। that God provides. लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर देता है। In 2 Kings chapter 5 is an amazing story. दूसरा राजा 5 में अद्भुत कहानी है This land is surrounded by enemy. और ये जो जमीन है जैसे शत्रुओं से घिर गई है, Israel, Samaria.
इजराइल और समारिया, Like the land is surrounded by enemies. और ये शत्रुओं से घिर गया They don't था, have any food. उनके पास कुछ खाना नहीं था, Like they are like it's a real lockdown situation. और सच में एक लॉकडाउन जैसी स्थिति They हो गई couldn't go थी। out. वो बाहर नहीं जा पा They रहे can't थे, eat anything. वो कुछ खाने के लिए कुछ नहीं They था, didn't have anything. उनके पास कुछ था ही नहीं। Elisha said one. एलिया ने कुछ चीज कही, Elisha, एलिशा ने कुछ कहा, he said, उन्होंने कहा tomorrow कल at this time इस वक्त the wheat will be sold very cheap price. और गेहूं बहुत ही सस्ते में बेचा जाएगा। The spokesperson from the ministry in that king's ministry, he said, how can this happen? और उस राजा के सभा में जो बोलने वाला था, ये कैसे हो सकता है, उसने कहा, If God opens the windows, will it happen? क्या परमेश्वर खिड़कियां खोल देगा तो ऐसा हो सकता है? You know, Elisha said, तो एलिशा ने क्या कहा, you will see it, आप देखोगे you will not enjoy it. लेकिन आप उसका स्वाद नहीं ले Read the पाओगे। story. आप इस कहानी को 2 पढ़िएगा, Kings chapter 5. दूसरा राजा 5 में, Great lockdown passage. और बंद करने वाला ग्रेट लॉकडाउन का But पैसेज है। as believers, लेकिन विश्वासी होने के नाते we in this time हम इस समय में recognize हम ये जान रहे हैं this is the high time. कि बहुत ही समय करीब आ गया I है, need to wake up. मुझे जागने की जरूरत I है, cannot live my lazy Christian life. और मैं अपना आलसी मसीही जीवन नहीं जी सकता। Make a commitment. और एक जैसे कि निर्णय बना लीजिए, There's a commitment. Yes, I'm going to follow the Lord even in my house. और निर्णय कीजिए कि मैं अपने घर में भी परमेश्वर के पीछे I'm चलूंगा, going to read the words. और मैं इन वचनों को पढ़ूंगा, I'm going to read the word and also meditate on it. और मैं वचनों को पढ़ूंगा, उसके ऊपर मनन भी करूंगा, I'm going to start to pray little by little. और मैं धीरे धीरे करके प्रार्थना भी करूंगा, Maybe a 2 minutes prayer. 2 मिनट की I'm प्रार्थना, going to learn prayer. और मैं प्रार्थना को सीखना चाहता हूँ, This is important. और ये बहुत ही जरूरी है These are the signs of I am awake. कि ये चिन्ह है कि मैं जैसे सतर्क हूँ, Or I can be a Christian, और मैं मसीह हूँ, but I am sleeping. लेकिन मैं सो रहा हूँ। But that's what Paul says, that get up. This is a high time. पौलुस इसलिए कहता है कि उठो, क्योंकि समय बहुत करीब है, Wake up. उठो Wear the garments of light. और प्रकाश के उन वस्त्रों को पहन लो। Last he says, put on Lord Jesus Christ. और आखिर में वो कहता है 14वें वचन में, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। Like when we do this, और जब हम इन चीजों को करते we are हैं, becoming like Christ. हम यीशु मसीह के जैसे बनते हैं, Armor of light. और जैसे प्रकाश के हथियार। Why the armor? क्यों हथियार? Every Christian is in a battle. क्योंकि हर एक मसीही एक लड़ाई में है। Ephesians 6 talks about to put on the whole armor of God. इफिसियों 6 जैसे कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो। This is God calling us. और इसीलिए परमेश्वर हमें बुला रहा है Armor of light. इस प्रकाश के हथियार के। Wake up, उठो, wear it, पहन लो, walk in it. और उसमें चलो, Walk in it. उसमें चलो। Maybe God calling us to walk in impossible way. और शायद परमेश्वर हमें ऐसी चाल चलने के लिए बुला रहा है जो बहुत ही कठिन है। Like a Peter पतरस की जैसे देखिए, walking on the water. पानी पे चलना। Maybe God is calling us. शायद परमेश्वर हमें बुला रहा है Take that bed, कि उस बिछोने को ले लो, rise up. उठो, Now you walk. अभी चलो। Sometimes that bed is too much. कभी कभी Comfort. बिछोना बहुत ही आराम है, Roll it. उसको रोल कीजिए, Take it. उठाइए Walk. और चलिए, Walk by faith. विश्वास से चलिए, Walk in the Lord. परमेश्वर में चलिए। Amen. आमीन। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं Thank you for this church. इस कलीसिया के लिए, हम आपका धन्यवाद करते Thank you हैं। for every believer. हर एक विश्वासी के लिए धन्यवाद। Lord, you protect them. पिता, आप उन्हें सुरक्षित रखिए। We know one thing. एक चीज हम जानते हैं, Lord, everything is falling apart, और हर एक चीज जैसे टूट रही है, but you are the rock. लेकिन आप वो पत्थर हो, Your word says, क्योंकि आपका वचन कहता है He who promised is faithful. जिसने वायदा किया है वो विश्वास योग्य है। Lord, your words are so true. क्योंकि आपके वचन परमेश्वर इतने सच्चे हैं, Lord, we believe you. और हम आप पर विश्वास करते हैं। Lord,
today as we heard this word, और जैसे आज हमने इस वचन को सुना है पिता, help Lord हमें मदद कीजिए walk in it, कि हम उसमें चले to make some kingdom decisions, Lord. और आपके राज्य के लिए कुछ निर्णय ले सके। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता। We pray for the needy people, Lord. और जो जरूरतमंद है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, Financial needs जिनकी आर्थिक in जरूरत our है own church, Lord. हमारी कलीसिया में, Father, they don't have a job, उनके पास नौकरियां नहीं हैं no money to pay the rent. और पैसे नहीं हैं और घर के भाड़े के Father, लिए। You know every problems, Lord. आप हर एक जो जरूरत है और तकलीफ को जानते Lord, हैं। provide, Lord. परमेश्वर आप उन्हें दीजिए। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते हैं पिता। You are using us, Lord, to be spreading the light, Lord. और आप हमारा इस्तेमाल कर रहे हो कि हम प्रकाश को फैलाएं। We pray at this point of any one of you listening, हम इस वक्त अगर कोई सुन रहा है उनके लिए प्रार्थना करना never चाहते हैं। receive Jesus as your personal Savior. अगर किसी ने यीशु मसीह का उद्धारक के रूप में स्वीकार नहीं Say किया this है, simple prayer. इस छोटी सी प्रार्थना को आप करें। Jesus, यीशु, I know I am a sinner. मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, Forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा करो Give me your eternal life. और मुझे आपका अनंत जीवन दो। Thank you. धन्यवाद। Amen. आमीन। If you took this prayer, अगर आपने इस प्रार्थना को किया Bible है, guarantees बाइबल ठोस रीति से कहता you है are a child of God. कि आप परमेश्वर के बच्चे हो, Your sins are forgiven. आपके पाप क्षमा हो चुके You can हैं। write to us, आप हमें लिख सकते हैं or you can contact a local church और किसी स्थानिक कलीसिया के साथ आप जुड़ सकते हो, where you can learn more about the Lord and Savior Jesus Christ. जहाँ पर आप यीशु मसीह के बारे में और जानकारी पा सकते हो। Thank you. धन्यवाद। Thank you for listening. धन्यवाद सुनने के लिए। God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। आइए सब मिलके इस आखिरी गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, परमेश्वर तेरी जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में